and welcome to the next video of matrices. Today we will learn how to use elementary transformation which I taught you in the last video to find out the inverse. First and most important thing which I want you to note is this is a question which most of the children are very confused. Okay, where to use A equals to IA? There are two kinds of notation, and where to use A is equal to A into I. These two statements will be used at different times. Let me explain you how elementary operations will be used to find out the inverse. Let X, A and B be two matrices of all same order such that X is equal to AB, right? So we can apply two kinds of operation, children. This you already know, elementary row transformation, and we can also apply elementary column transformations. So let's talk about the first one. When we apply elementary row transformation on the matrix, we will apply these operations simultaneously on X and A. On X and A. So that means the operations, the matrix X is going to change and the matrix A is going to change. So in this case, if I will apply ERT, what was ERT? Let me explain you. We can interchange any two rows. This was the first operation. We can multiply any row by a scalar multiple, right? That is a non-zero multiple. K should not be equal to 0. And then we can add to any row, we can add a scalar multiple of the other row. Okay, these were the three operations. So these three operations can be done using ERT. Then what will change? Your this element A will change and this I will change. यानी कि आप इसका first और इसके first में apply करोगे. Whereas अगर आप elementary column transformation कर रहे हो, elementary column transformation, तो वो किस पे होते हैं? वो X पे होते हैं और second matrix पे होते हैं. X पे होते हैं और second matrix पे होते हैं. So वो इधर होंगे and इधर होंगे. And again same way में elementary column transformations क्या थे? Ci interchanges with Cj, that was first. Second, again Ci can be multiplied by any scalar multiple, right, which is non-zero, and then any column can be added to a scalar multiple of some other column. So this was, so now what is our aim? So basically what I have to do is I have to convert, after using these operations, I have to convert A into I and I will get some B here, because जो ऑपरेशन मैं यहाँ A में लगा रही हूँ वो मैं I में भी लगा रही हूँ, राइट? तो ये I जो है वो बदल जाएगा और A को मुझे वापस I बनाना है. So what is my target? That I have to convert this A into I. So you know that by the definition of inverse, I is equal to B into A, I can always say that A inverse is B, right? Similarly, in this case, again, मुझे ऑपरेशन इसमें लगाने हैं और इसमें लगाने हैं. Again, मेरा मोटिव क्या है? A को I बनाना, right? जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मुझे I चाहिए और इन टर्न ये जो I था वो कुछ चेंज होके B हो जाएगा. तो इस केस में भी A इनवर्स जो है वो क्या आएगा? B आएगा. सो आपको याद रखना है जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो सेकंड वाले मैट्रिक्स पे यूज़ होगा, राइट हैंड साइड का सेकंड मैट्रिक्स पे ऑपरेशन यूज़ होगा, और जब ERT है, एलिमेंट्री कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी चेंज्ड. दैट इज़ द rule which you have to remember. Now, a very important thing which I want you to remember. In case when you are applying these operations, ये तीन ऑपरेशन जब आप क्वेश्चन में लगाओगे और सपोज करो आपके सारे जीरोज आ गए in a row, single row or a single column. If you get all zeros in a single row or single column, then A inverse does not exist. हमने invertible matrix में सीखा था कि सारे matrix का inverse exist नहीं करता. Not necessary that all
matrix will have a inverse. So in this today's video we will just learn about 2 by 2 matrix because उसमें ऑपरेशन थोड़े कम लगने हैं. अगर मैंने 3 by 3 भी इसी वीडियो में सिखा दिया then again you will get confused, and I'll tell you a very good trick which will never fail to use to solve a question using ERT or ECT to find the inverse of a matrix. Let's go ahead. I'm talking about first question. So when I talk about the first question, children, I'm talking about using, again I told you we can use ERT also and we can use ECT also. No matter what you use, your answer will remain the same. Let's check. So suppose I consider this as A and I am using ERT, so you have to mention using ERT A is equal to IA. तो इसी से मुझे पता चल जाएगा, जैसे ही मैंने ये नोटेशन यूज़ किया तो सबको समझ आ जाना चाहिए कि मैंने ERT यूज़ किया है. सो A हमें गिवन है, दैट इज़ 1 -1 2 and 3. देन I हमें पता होता है, दैट इज़ 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड A विल रिमेन एज इट इज़ क्योंकि वो इनटू में है. दिस विल रिमेन एज इट इज़. नाउ I have to use again all the three transformations to check whether this is, again मैं transformations लिख देती हूँ. मैं 2 rows को interchange कर सकती हूँ. मैं किसी भी रो को एक स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो एड अ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो टू द गिवन रो. ओके, इसका मैं रूल आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो रो चेंज होगी वो एज इट इज़ यूज़ होगी, उसका कोफिशिएंट 1 होगा, उसको आप किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते. दिस विल बी 1 हियर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ तो ये ऑलरेडी 1 है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है. नाउ आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट अ हिंट. लेट मी गिव यू अ हिंट. Whenever you have to solve a question using ERT, which is a 2 by 2 matrix, always you move in this manner. मतलब सबसे पहले इसको 1 बनाना, ठीक है. उसके बाद ये जो एलिमेंट है ये 0 बनेगा क्योंकि हमें I बनाना है इसे. I के लिए यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो 0 कैसे आएगा? उसके लिए हम इस 1 को यूज़ करेंगे. कैसे? Can I say R2 tends to R2 minus twice of R1? और ऐसा मैंने क्यों किया बेटा? बिकॉज 2 R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1. चेक करो मेरे पास क्या आएगा. सो R1 रिमेन्स एज इट इज. R2 में यहाँ 0 आ गया और इधर R2 में क्या आया? 3 माइनस 2 इंटू -1, क्योंकि इसका रेस्पेक्टिव पोजिशन जो है जहाँ पे ऑपरेशन लगाना है उसमें रो 1 में क्या है? -1 है. सो क्या आया? 3 + 2 दैट इज 5 इज इक्वल टू 1 0. अगेन यहाँ पे रो 2 चेंज हो जाएगा. 0 0 -2 इंटू 1, सो दिस विल बी -2, एंड 1 -2 इंटू 0, सो दिस विल बी 1. सो आई होप यू आर वेरी क्लियर कि मैंने रो 2 को पूरा चेंज किया है. इस वाले में भी राइट में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. नाउ लेट्स मूव अहेड. जैसे ही ये 0 बन जाएगा, सो दिस यू हैव टू मेक इट 1, एंड ये 1 एक ही ऑपरेशन से बनेगा. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू. लेट मी फर्स्ट इरेज दिस सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. सो इसको 1 बनाने के लिए आप स्केलर मल्टीपल से डिवाइड कर दोगे. ऐसा हम क्यों करेंगे उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि हम 0 ऑलरेडी बना चुके हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. सो दैट इज़ वाई दिस विल बी 1. अब क्योंकि मैंने इधर डिवाइड किया है तो मुझे इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा. 2/5 1/5 इंटू A. राइट नाउ आफ्टर मेकिंग दिस 1, आई टोल्ड यू दिस इज़ हाउ यू हैव टू मूव. येलो एरो देखो, येलो लाइन, ये 1 बन गया है. ये ऑलरेडी 1 था, यहाँ पे 2 की जगह 0 बना लिया, 3 की जगह 1 बना लिया. अब हमारा लास्ट एलिमेंट बचा है, इसकी जगह क्या बनाना है? 0 बनाना है. अगेन इसकी जगह 0 बनाने के लिए हम वी विल यूज़ दिस एलिमेंट. तो अगेन आपको क्लिक कर जाएगा. R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2. सो
ये इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है. सो 1 0 0 1. Let's change here also. This is 1 plus minus 2 by 5. So क्या आएगा? 5 में से 2 गया 3 by 5. This is 0 plus 1 by 5, that is 1 by 5. A minus 2 by 5 and 1 by 5. Check कर लीजिए. You have to do your calculations very carefully. You should not make any mistake. Now check. हमारे पास आ गया I is equal to B into A. So this implies A inverse equals to B. So what is our B? It is 3 by 5, 1 by 5, minus 2 by 5 and again 1 by 5. Let me just move this a little bit. So again 1 by 5. Okay, so this is what is my A inverse. Now ये तो हमने सेम क्वेश्चन को हम ECT से करते हैं. अगर मैं सेम क्वेश्चन को ETC से करूं तो मेरा अगेन पहला रूल, पहला स्टेटमेंट, दैट इज A इंटू आई. तो अगेन इससे नोटेशन से ही समझ आएगा कि मैं ECT यूज़ कर रही हूँ. लेट्स मूव फॉर द फर्स्ट. अब जैसे मैंने इसमें एरो हेड येलो दिया है, लेट मी शो यू कि इसमें कैसे चलना होता है. जब हम ECT करेंगे चिल्ड्रन, फर्स्ट लेट मी राइट डाउन. दिस इज 1 minus 1 2 3. दिस इज A into I, that is 1 0 0 1. Okay, now let me show you how you will move, how it will be easier if you move. So you move like this now. ठीक है. अब अगर मुझे ऐसे मूव करना है तो यहाँ तो ये तो 1 है, तो ये तो ऑलरेडी दिस इज़ योर बिगिनिंग पॉइंट. दिस इज़ 1. दिस, सो फर्स्ट स्टेप करने की तो ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टेप करते हैं इस 1 को 0 बनाना. चेक करो. अब हम कॉलम सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं. तो C2 टेंड्स टू C2 प्लस C1. चेक करिए, 0 आ जाएगा ना. -1 + 1. सो यहाँ 1, यहाँ 2. फर्स्ट कॉलम रिमेन्स एज इट इज़. कॉलम 2 चेंज करते हैं. -1 + 1 इज़ 0 and 3 + 2 is 5 equals to सेम ऑपरेशन यहाँ. कॉलम 1 रिमेन्स एज इट इज़. इसमें कॉलम 1 में 0 + 1 1 and 1 + 0 अगेन 1. ये आ गया हमारा पहला ऑपरेशन. अब नेक्स्ट इसको मुझे, इस 5 को मुझे 1 बनाना है. अगेन क्योंकि मैं ये 0 ऑलरेडी बना चुकी हूँ बेटा, तो मैं इसको 5 से डिवाइड, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे. तो यानी कि C2 टेंड्स टू 1 by 5 टाइम्स ऑफ C2. सो चेक करो क्या आ गया. ये आ गया 1 0 2 5 2 1. 5 divided by 5 is 1 children. So 5 divided by 5 is 1. और इस साइड भी 5 से डिवाइड. सिर्फ कॉलम 2 चेंज होगा क्योंकि मैंने सिर्फ कॉलम 2 को 5 से डिवाइड किया है. गॉट इट. नाउ लेट्स मूव अहेड. आफ्टर डूइंग दिस ये 3 डिजिट आ गए 1 0 1, राइट. इसके बाद बस ये लास्ट बचा है कि इसको मुझे 0 बनाना है. अब इसको 0 बनाने के लिए आई विल यूज़ दिस 1. तो वो कैसे यूज़ होगा. C1 टेंड्स टू C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2. चेक करो, क्योंकि 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 इज़ 1, तो ये 0 बनाने का फ़ायदा हुआ. सो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, दैट इज़ 0. सो दिस इज़ 0 ऑलरेडी एंड दिस वॉज 1 इज इक्वल टू A एज इट इज़. अब देखो क्या चेंज हुआ. ये 1 by 5, ये 1 by 5, और यहाँ पे दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस. तो 0 माइनस 2 इंटू 1 by 5, दैट इज माइनस 2 by 5, एंड 1 माइनस 2 by 5, 2 इंटू 1 by 5, दिस इज 3 by 5. सो चेक करो अगेन मेरे पास क्या आया. I इज इक्वल टू A डॉट B आ गया. सो अगेन दिस इम्प्लाइज A इनवर्स इज इक्वल टू B, विच इज 3 by 5, 1 by 5, minus 2 by 5 and 1 by 5. So that is what I told you कि whether you want to use, let me just erase this so that you don't get confused, whether you want to use ERT or ECT. So these are the two different methods, but
since we have already studied the theorem that A inverse, if exist, is always unique. So that is why we can't, whether you use ERT or ECT, you will always get a unique answer. अगर होगा आंसर तो वो unique ही आएगा. Now let me also show you a question where it was कि inverse exist ही नहीं करेगा. बाकी आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो. मैंने आपको मेथड बहुत क्लियरली बता दिया है हाउ टू मूव. जब ERT है तो ऐसे मूव करिएगा, राइट. दिस इज द वे यू मूव इफ यू यूज ERT. दिस इज द नोटेशन ऑफ ERT. व्हेन यू आर यूजिंग ECT, दिस इज द नोटेशन एंड दिस इज हाउ यू मूव. ओके. एंड अगेन टारगेट क्या होता है, इस A को हमें I बनाना होता है और ये I इन प्रोसेस चेंज होके B आ जाता है और यही B जो है वो इन्वर्स होता है. सिमिलरली इधर भी इसको I बनाना होता है, इसको कुछ ये चेंज होके, सॉरी ये नहीं, ये वाला चेंज होके ऑटोमेटिकली, लेट मी डू अनडू थिंग, इसको I बनाना होता है एंड ये इन रिस्पेक्ट टू दैट चेंज होके कुछ B आ जाता है. अगेन दिस B is A inverse. Okay, so let's do one more question where the inverse does not exist. I find using ERT much easier क्योंकि generally question में लिखा हुआ नहीं आता कि आपको ERT use करना है या ECT use करना है. So whichever method you are comfortable with, you can use that. But since I am more comfortable with ERT, so I am going to use ERT in my next question. I have taught you both the methods, so you can continue doing any question using this method. Let's do question number 12. Again, I am using ERT. Okay, so I am just writing 6 minus 3 minus 2 1 equals to ERT यूज किया है तो A is equal to notation क्या आएगी, I into A. So I is 1 0 0 1 into A. Okay, let's move. सबसे पहले इस 6 को 1 बनाना, तो 6 को 1 बनाना तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे आपको उस नंबर को 1 बनाना होगा. तो वो कैसे बनाओगे, ये तो बहुत सिंपल है. R1 जो भी नंबर है उससे R1 को डिवाइड कर दो. तो यहाँ पे अगर 6 है तो R1 को 6 से डिवाइड कर दो, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, -3 है तो -3 से डिवाइड कर दो. तो ये हो गया हमारा पहला ऑपरेशन. Let me use a round bracket to show this so that you don't get confused. I'm not going to use square bracket. Okay. So we are using R1 tends to R1 divided by 6 and let's do the change. Row 1 में कर रहे हैं. This is row 1. So this is 1. -3 divided by 6 is -half. This is -2. This is 1. Again क्योंकि उधर की है तो इधर भी करना पड़ेगा. 1/6, 0/6 is 0 into A. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1. अब अगेन मूवमेंट समझा देती हूँ. हमें ऐसे चलना है. दिस इज़ हाउ वी विल मूव. अब मुझे इसको इस -2 की जगह 0 लाना है. अगेन आई विल यूज़ दिस वन. ओके, सो R2 टेंड्स टू R2 माइनस नहीं प्लस ट्वाइस ऑफ R1. अगेन ये कैसे होगा, जैसे यहाँ -2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया. अगर यहाँ -3 होता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, राइट. तो ऑपरेशन ये चेंज हो जाता. अगर यहाँ +5 होता तो हम करते R2 टेंड्स टू R2 -5 टाइम्स ऑफ R1. सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस वन टू योर एडवांटेज. इस वन को यूज करने का तरीका. 1 -half, R2 टेंड्स टू R2 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये तो 0 ही हो गया. एंड 1 -2 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू -1/2. 2 कैंसिल, राइट. और यहाँ माइनस का साइन था, करेक्ट चिल्ड्रन. सो ये यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया. चेक करो, ये 1/6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 1. अब चेक करिए, यही मैंने लास्ट में आपको नोट्स में ही बताया था. इफ़ ड्यूरिंग
ERT, while using ERT और using ECT एक पूरी रो या एक पूरी कॉलम ज़ीरो आ जाती है, hence inverse does not exist. Does not exist. Okay, so this is what you will say that why it does not exist. Please give a reason. As all entries in row 2 on left side are 0. So therefore A inverse does not exist. So I hope you are able to understand this note, remark. In case after applying one or more elementary row या column transformation, if we obtain all zeros in one row or one or more rows of a matrix A on left hand side, then A inverse does not exist. So this is what is the meaning of the remark. So I want you to complete till question number 14, and if you have any doubt, kindly ask me in the comment below. I will teach you the 3x3 matrix ERT in the next video, otherwise you will not understand the concept, and we will go one concept at a time. So please do this and continue. Okay, let me show you in any, if you want to check any method, let me show you this. अगर question number 2 को ERT से करना है तो आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो. पहला ऑपरेशन ही दो तरीके से हो जाएगा. कैसे बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो. या तो मैं R1 इंटरचेंज कर सकती हूँ R2 के साथ. तो चेक करो, मेरे पास ऊपर 1 आ जाएगा बेटा, और ये इधर भी रोज इंटरचेंज हो जाएंगी, राइट? और आई कैन ऑल्सो से द वे आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसे डिवाइड कर दो. आई कैन ऑल्सो से R1 tends to R1 by R2. So this is 1, right? This is 1 by 2, this is 1, this is 1, is equal to again 1 by 2, 0, 0, 1 into A. So आगे तो आपको करना आता ही है. So that is how you will move. Okay, so it is not necessary कि आप एक ही ऑपरेशन पे स्टिक रहो. आप कुछ भी कर सकते हो, बस मूवमेंट याद रखिएगा, so that the question becomes little easier for you. Okay, अगर if I am at your place तो I will choose this. Why I will choose this? Because यहाँ पे मुझे कोई फ्रैक्शन नहीं दिखाई दे रही. बट अगर मैं ये स्टेप करती हूँ तो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. So to avoid fraction, you can do this as your first step and then move ahead. Okay, children? So you can continue doing till question number 14 after seeing this video. If you have any doubt, kindly mention in the comment. All right? Thank you, everyone.